Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 6 and the chapter name is colonialism and the city. This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है colonialism and the city और ये आपका थर्ड सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. After that we will continue with our discussion. Okay, so in our last class we talked about how many Delhis before New Delhi. Okay, तो basically इस टॉपिक में हमने क्या बात किया था बच्चों? We saw that there were as many as 14 capital cities near the river, near the bank of river Yamuna, that flows through Delhi, right? तो हमने देखा था कि अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो before New Delhi that became as the capital of British India after 1911 or let's say 1912 में, because 1911 में it was announced finally that now the capital would be shifted from Calcutta to Delhi. Now that I am going to tell you in this session. And what happened that before that there were as many as 14 capital cities, and in that the most important or the most splendid capital city was that of the Shahjahanabad that was built by Shah Jahan, right? तो हम लोगों ने देखा शाहजहानाबाद कब से शुरू हुआ था बिल्ड होना. So it was in 1639 that it was started by the रूलर दैट इज शाहजहां हु वाज अ मुगल रूलर, राइट? तो हम लोगों ने बहुत सारे फीचर्स देखे थे शाहजहानाबाद के. सो सम ऑफ देम वर दैट इट कंसिस्टेड ऑफ अ पैलेस फोर्ट, राइट? अ फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स, एंड वी टॉक्ड अबाउट रेड फोर्ट और लाल किला इन दैट वाज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. एंड आई टोल्ड दैट यू व्हेनेवर यू कम टू दिल्ली और यू विजिट दिल्ली you can go and visit Red Fort. It's still today there. And also then we talked about 14 gates कि पूरा दिल्ली जो पूरा वर्ल्ड सिटी था दिल्ली का बच्चों, उस टाइम पे 14 गेट्स बनाए गए थे. आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द गेट्स लाइक दैट ऑफ द दिल्ली गेट और लाहौर गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, ऐसे बहुत सारे गेट्स थे. ओके, आफ्टर दैट वी सॉ दैट देयर वर सो मेनी बाजार्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शाहजहानाबाद सिटी, राइट? फॉर एग्जांपल आई गेव द नेम ऑफ बाजार लाइक दैट ऑफ द चांदनी चौक और फैज बाजार, जहाँ पे बहुत सारे रॉयल प्रोसेशंस हुआ करते थे उस टाइम पे. Apart from that, we also saw that that time Shahjahanabad or the Mughal Empire, it was known for its Sufi culture, right? There was new development of Sufi culture at that time, and some of the most important features were of the dargahs, idgahs, right? We saw that there was the dargah, that was the tomb of the Sufi saints, and we saw idgahs as the open place for prayer that was done by the Muslims, and especially it was meant for the Eid prayers, right? तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने शाहजहानाबाद के बारे में देखा. Now today let us talk more about the Shahjahanabad city and let us see that how this new Delhi, how it became an important city after Shahjahanabad when now British Empire it was emerging और Calcutta से city New Delhi में shift क्यों हो रहा था. Okay, so let us discuss it. So while we are talking about Shahjahanabad, so there was also, you will observe that in Shahjahanabad there were sharp divisions between rich and poor. तो बच्चों आज के डेट पे भी whenever we are talking about the modern time, आपको पता है कि बहुत सारे लोग बहुत रिच हैं and there are so many people, section of society that is poor. तो likewise when we are talking about history of our country, in that we can see that there were also sharp divisions between the rich and poor, and this can be seen in the city of Shahjahanabad. Now let's see how. So Havelis or mansions were interspread by with the far more numerous mud houses of the poor. तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि उस टाइम पे जब हम लोग शाहजहानाबाद की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे मेंशंस या हवेलीज थे. नाउ व्हाट आर दीज हवेलीज? तो ऐसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो. नाउ दीज वर सम ऑफ द बिग हाउसेस, बिग मेंशंस दैट वाज मेनली बिल्ड फॉर हुम? फॉर द रूलर्स, जो वहां पे रहा करते थे, राइट? उस टाइम के जो राजा महाराजा हुआ करते थे बच्चों, जो रूलर्स हुआ करते थे, वो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहा करते थे, राइट? और ये हवेली जो थे बच्चों, दीज वर डिवाइडेड फ्रॉम दैट ऑफ द मड हाउसेस ऑफ द पुअर, राइट? तो ऐसे डिस्टिंक्शन होता था बिटवीन द रिच एंड बिटवीन द पुअर, राइट? तो रिच लोग कहाँ रहते थे? वो हवेलीज में, बड़े बड़े मेंशंस में रहा करते थे, और जो पुअर थे बच्चों वो मड हाउस में रहा करते थे. तो जो हवेलीज था उस टाइम पे आप अगर कभी भी देखोगे पिक्चर्स में तो आपको दिखेगा कि जो हवेलीज थे बच्चों वो काफी दूरी पे बना रहता था फ्रॉम दैट ऑफ द मड हाउसेस और फ्रॉम दैट ऑफ द हाउसेस ऑफ द पुअर पीपल. ओके, ऑल्सो the colorful world of poetry and dance was usually enjoyed only by men. तो बच्चों उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया सूफी कल्चर था और ये मेंशंस में बहुत सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, डांस हुआ करता था, पोएट्रीज होते थे, देयर वर पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट
डिफरेंट एरियाज, जो लोग यहाँ पर रूलर के सामने आके परफॉर्म करते थे, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स वर जनरली एंजॉयड बाय मेन, ओके. और बहुत सारे जो रॉयल प्रोसेशंस होते थे बच्चों, जो रोड पे आपने, जैसे मैंने चांदनी चौक का एग्जांपल दिया था, दैट दीज एरियाज लेड टू द रॉयल प्रोसेशंस. इससे रॉयल प्रोसेशंस क्रॉस किया जाता था, रूलर्स यूज्ड टू गो फ्रॉम दीज एरियाज ओनली. तो ये सारी जगह पे जो भी रॉयल प्रोसेशंस होता था, या बहुत सारे रिलीजियस प्रोसेशंस भी होते थे, दीज वर सम ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट आल्सो, ओके. तो बेसिकली आप सूफी कल्चर के बारे में पढ़े, आपने देखा बहुत सारे बाजार्स थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शाहजहानाबाद. वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द हवेलीज दैट वर बिल्ट इन द शाहजहानाबाद, राइट. और these were different from the mud houses that were built for the poor, right. So all these things, these are some of the major important, features when we are talking about Shahjahanabad that was built by Shah Jahan. अब हम लोग न्यू दिल्ली की बारे में बात करते हैं बच्चों, एंड लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस न्यू दिल्ली, द कैपिटल दैट वाज बिल्ड अंडर British India, how it was different from the architecture, or when we are talking about the features of the city of Shahjahanabad, okay. So now let us see the making of New Delhi. So in 1803, the British gained control of Delhi after defeating the Marathas. तो बच्चों आप लोगों ने मराठास के बारे में पढ़ा है when we are talking about chapter number 2, okay. In that we saw about the Marathas there. तो आप लोग मराठास के बारे में जानते हो कि these were the alliance of different rulers जो उस टाइम पे मराठा रीजन में रूल कर रहे थे, एंड दीज पीपल दे फॉट जो हमारा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास. So it was finally in 1803 that Marathas, they defeated, the British defeated the Marathas and they gained control over Delhi. But उस टाइम पे उन लोगों ने कंट्रोल तो ले लिया था दिल्ली का, but Delhi was not made as the capital city, okay? लेकिन उसके पहले कैपिटल सिटी कौन था बच्चों when we are talking about the British India? So since the capital city of British India was Calcutta. Now you remember when we talked about the presidency cities, हमने देखा था there were 3 major presidency cities. In that one of them was Calcutta, the other 2 were Bombay and Madras. तो बच्चों सबसे पहले जो कैपिटल सिटी था ब्रिटिश इंडिया का, it was Calcutta. And in this picture you can see this is the old Calcutta that we are talking about during the British time, okay? और उस टाइम उसके बाद क्या हुआ था that when it was the capital of British India, so the Mughal emperor was allowed to continue living in the palace complex in the Red Fort. तो आपको पता है that British it came in the early 1600, right, in India. लेकिन उस टाइम पे आपको ये भी पता है that Mughal Empire was still there in India and it was ruling the territories of Indian subcontinent, right? So we can say that उस टाइम पे British आ तो गए थे, now they were setting up their administration, but it was in fact the rulers of Mughal Empire who was ruling the country, right? उस टाइम पे पूरा कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में तो नहीं था, they were not directly ruling our country. So therefore the Mughal emperors they were allowed to live in the palace of Red Fort. जैसे Red Fort के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था. So these rulers they used to live in the Red Fort that time, and the capital for British India was Calcutta here, okay? Also before 1857. अब बच्चों 1857 के पहले देखते हैं, क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है द रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके? सो 1857 के पहले व्हाट वाज दिल्ली लाइक, और उस टाइम डेवलपमेंट कैसा था दिल्ली का, हाउ वर द पीपल लिविंग इन न्यू दिल्ली, सॉरी द ओल्ड दिल्ली देयर. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल थिंग. सो डेवलपमेंट्स इन दिल्ली वर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोस इन अदर कॉलोनियल सिटीज. तो बच्चों बहुत सारे सिटीज थे दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल पावर, द ब्रिटिश रूल, राइट. तो कैसा था बाकी डेवलपमेंट्स जो दिल्ली के अलावा बाकी सिटीज में जो डेवलपमेंट था, लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन दैट. सो इन मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा, the living spaces of Indians and the British were sharply separated. तो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं मद्रास का, बॉम्बे का या कैलकाटा, when we are talking about the British India, right, the old time, the history, तो उस टाइम हम लोग देखेंगे बच्चों that the living spaces जहाँ पे लोग रहते थे, so it was divided between the Indians and the British, okay? तो एक Indians जहाँ पे रहा करते थे वो एकदम different area था, and this was separated from the area where the British people were living, okay? Now this is the main difference while we are talking about the developments in the city of Delhi and that of the other colonial cities, okay? So Indians lived in the black areas while the British lived in well laid out white areas. तो बच्चों मैंने आपको constantly ये बताया that how this British people they saw themselves as superior to the Indians, right? Now they saw that their skin color is white and this meant because of the skin color they thought that they are the most civilized one, right? तो स्किन कलर के बेसिस पे ये रेसिज्म हुआ था हमारे कंट्री में, एंड यू मस्ट हैव रेड अबाउट दीज थिंग्स इन योर
civics chapter also about the racism. ये अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, हर जगह आपको दिखेगा wherever there was the colonial rule. Okay, so what happened कि उस टाइम पे जो भी एरियाज थे जहाँ पे इंडियंस रह रहे थे, so that was demarcated as the black areas. Okay, because of the dark skin color of the Indians. Okay, that is really ironical कि वो कंट्री हमारा कंट्री था, but still people here were discriminated on the basis of their color. Also where the British were living, तो जहाँ पे ब्रिटिश रहे थे that were the well laid out area and these were the white areas जहाँ पे ब्रिटिश रह रहे थे. Okay, so this was the basic demarcation between the black area and the white area where the Indians and the British were living, where in Madras, Bangalore, Bombay and Calcutta. Okay, अब हम दिल्ली में देखते हैं what happened. So in Delhi, especially in the first half of 19th century, the British lived along with the wealthier Indians in the walled city. तो बच्चों जैसे आपको पता है that while we were talking about शाहजहानाबाद, we saw that the city was walled, right? तो ये चारों तरफ से आप देखो बहुत सारे गेट्स थे and the whole city was surrounded with the walls, right? So what happened in Delhi when the British they started living in Delhi? So in the first half of 19th century, that is after 1850s. Okay, हम लोग अगर 1850s के बारे में बात कर रहे हैं, so the British they lived along with the wealthier people. तो आपने देखा कि मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में ये लोग तो बिल्कुल अलग एरिया में रह रहे थे, जो व्हाइट एरिया हुआ करता था, लेकिन दिल्ली में ये लोग जो वेल्दी लोग थे, वेल्दी इंडियंस थे उस टाइम पे जो दिल्ली में रह रहे थे, these people, the British, they were living along with the wealthier people. Okay, now you can see the difference here. Also, the British learned to enjoy Urdu, Persian culture and poetry and participated in local festivals. अब कैसे differentiate आप कर सकते हो between the lifestyle of British in Delhi and that of the other colonial cities? तो यहाँ दिल्ली में जैसे वो लोग रहने लगे थे, तो you know that Delhi was famous for its Urdu और Persian culture. आप लोगों ने मुगल एम्पायर में भी पढ़ा है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो ऑफिशियल लैंग्वेज वाज पर्शियन, राइट? उनका जो टोटल कल्चर था इट वाज डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द पर्शिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया है उस टाइम पे जहां से वो मुस्लिम रूल आया था. ओके, सो दीज पीपल, द ब्रिटिश आल्सो, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस पर्शियन कल्चर्स, जो उस टाइम पे डांस होता था, पोएट्रीज होते थे पर्शियन लैंग्वेज में. सो दीज ब्रिटिश वर आल्सो गेटिंग used to these poetries and they also participated in the local festivals. Now here in this picture you can see this is the old Delhi, right? मतलब उस टाइम पे जब Delhi it was being constructed तो इस तरीके का आपका Delhi लगता था. This was the walled city. आप पूरे एरिया में देखोगे तो it was surrounded by the boundary of the walls. Okay. Also, the establishment of the Delhi College in 1792 led to a great intellectual flowering in sciences as well as the humanities, largely in the Urdu language. तो बच्चों उस टाइम पे आपको ये भी पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस भी बन रहे थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आ रहे थे when we are talking about the British India, right? तो उस टाइम पे आप देखो कि सबसे पहले क्या एस्टैब्लिश किया गया था, तो दिल्ली में दिल्ली कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट? एक कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था एंड द नेम गिवन टू इट वाज दिल्ली कॉलेज एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1792. दो इफ यू लुक फॉर पिक्चर्स आपको दिल्ली कॉलेज का ऐसा कोई पिक्चर नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि later on it was destroyed. Okay, we will see the reason for that. So it led to great intellectual flowering in science as well as humanities. तो आप अगर colleges में जाओगे बच्चों तो there are different streams, that of the science, humanities या arts जो पेपर होता है, तो ये सारे subjects थे जो यहाँ पे introduce किए गए थे in Delhi College. Okay, also it was in Urdu, also it was known famous for its Urdu language, जो उस टाइम पे उर्दू लैंग्वेज बहुत लोगों को सिखाया जा रहा था. Okay. Many refer to the period from 1830 to 1857 as the period of Delhi Renaissance. Okay, now this is a new term for you, that is Renaissance. Now what is the meaning of Renaissance? So this period, the period Renaissance, in literal sense it means that is the rebirth of art and culture. तो आप लोग जब भी ये टाइम की बात करोगे, let's say from the period, you should remember the period कि दिल्ली Renaissance कौन से पीरियड को रेफर किया जाता है. So it is between 1830 to 1857. Okay, before 1857 जो हमारा famous revolt हुआ था and 1830. It is not hard for you to remember the year here. Okay, तो इस पीरियड को हम लोग दिल्ली रेनेसा कहते हैं बच्चों. क्यों? क्योंकि this was the revival of art and learning and culture. कि इस टाइम पे बहुत सारी नई चीजें in terms of art, in terms of culture, Persian culture, उर्दू लैंग्वेज, तो बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा था दिल्ली में. Okay, that is why it is known as the Delhi Renaissance or the period of creative writing or creative activities that were taking place here in Delhi. I hope the concept is clear here about the Delhi Renaissance. Okay. Also, लेकिन अब तो हम लोग 1857 के पहले की बात कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आपको पता है it was during the time of 1857 that the first major revolt it broke out
जिसके बारे में वी हैव डन एन एक्सटेंसिव स्टडी इन आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। तो अब आप 1857 के पहले देखो कितना प्रॉस्पेरस टाइम था दिल्ली के लिए। नाउ दिस वाज द पीरियड ऑफ दिल्ली रेनेसा, न्यू कल्चर एक्टिविटीज वर टेकिंग प्लेस इन दिस एरिया, but all this changed after 1857. Why? Because of the revolt, right? So Delhi remained under the rebel control for 4 months. Now you must be remembering कि कैसे शुरुआत हुई थी about the revolt when we talked about. तो ये मेरठ से शुरू हुआ था. After that people they traveled to Delhi in order to gain the leadership of who? Bahadur Shah Zafar, right? So what happened? So when the British regained the city, they embarked on a campaign of revenge and plunder. तो आपको याद होगा बच्चों की फर्स्ट फेज जब हमने 1857 का पढ़ा था, सो इट वाज द रेबल्स हु वर गेनिंग द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, राइट। जितना भी ब्रिटिश प्रेजेंस था वो लोग हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बहुत सारी यूरोपियन फैमिलीज जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में दिल्ली में रह रहे थे, उनके पूरे हाउसेस को बर्न कर रहे थे, ऑफिसर्स को मार रहे थे। तो यू कैन सी कि पहला पूरा टाइम जो था वहां पे रेबल्स दे वर विनिंग, दे वर डिफीटिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स। बट लेटर ऑन हमने देखा जो सेकेंड फेज था हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 का, so at that time we saw that British took control of all the areas, they started defeating the rebels, they started killing the rebels. So definitely after the British when they regained the city, जब उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया था दिल्ली का, so उनका पूरा एक कैंपेन शुरू हुआ था ऑफ रिवेंज एंड प्लटर। यू कैन सी दैट दीज पीपल वर ऑब्वियसली वेरी एंग्री, क्योंकि ब्रिटिश को कभी लगा ही नहीं था कि ये कितना बड़ा रिवोल्ट हो सकता है। दे वर नॉट एनी टाइम दे वर नॉट सस्पिशियस ऑफ द फैक्ट कि एक छोटे से रीजन की वजह से उनको लगा कि इतना बड़ा रिवोल्ट कर सकते हैं इंडियंस। तो ऑब्वियसली वो लोग काफी डरे हुए थे और इसकी वजह से पूरा एक प्लंडर और एक रिवेंज का पूरा एक एनवायरनमेंट बन चुका था। नाउ द फेमस पोएट गालिब विटनेस्ड द इवेंट्स ऑफ द टाइम। तो उस टाइम पे दिल्ली में एक बहुत फेमस पोएट थे बच्चों, गालिब। आज के डेट में भी व्हेन यू सर्च अबाउट हिम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्शियन पोएट और द उर्दू पोएट, ओके। सो गालिब ने बहुत कुछ लिखा था, वो उस टाइम पे वहीं पे रह रहे थे व्हेन द रिवोल्ट टुक प्लेस। तो उन्होंने पूरा आप एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ सकते हो कि उन्होंने आई विटनेस एग्जांपल दिया था व्हाट वाज हैपनिंग इन दिल्ली। In this picture also you can see how the British now they are on this revenge on this motive of revenge and plunder, they are destroying each and everything। पूरा कश्मीरी गेट जो आप लोगों ने गेट्स के बारे में पढ़ा, उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, ओके। Also to prevent another rebellion, the British exiled Bahadur Shah to Burma, now Myanmar, dismantled his court, razed several of the palaces, closed down gardens and built barracks for troops in their place। तो आपको पता है बच्चों कि हमने ये पहले भी पढ़ा था when we are talking about 1857 कि जैसे ही रिवोल्ट खत्म हुआ सबसे पहले द लीडर हु वाज बहादुर शाह जफर, उनको ही वाज सेंट फॉर ट्रायल और फाइनली उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल गया था इन रंगून जो हमारा प्रेजेंट डे म्यांमार में है, राइट। ऑल्सो उनके पूरे कोर्ट को जो रेड फोर्ट में वो रह रहे थे, पूरा पैलेस को उन्होंने बर्बाद कर दिया। जितने भी पैलेसेस थे उस टाइम पे सबको उन्होंने दे डिस्ट्रॉयड ऑल दीज पैलेसेस। जो भी गार्डन्स थे ऑल द गार्डन्स वर क्लोज्ड और बहुत सारे बराक्स मतलब बैरक्स यानी बहुत सारे ट्रूप्स को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में खड़ा कर दिया था फॉर देयर ओन सेफ्टी, ओके। नाउ दिस इज हाउ द होल सिनेरियो इज चेंजिंग आफ्टर 1857। आप देख सकते हो कि कैसे पूरा दिल्ली एक टाइम पे जो पूरा एक रेनेसा का टाइम चल रहा था, क्रिएटिव एक्टिविटीज वर टेकिंग प्लेस, बट पोस्ट 1857 आफ्टर 1857 और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857 द होल सिनेरियो वाज चेंज्ड, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, वी सॉ डिफरेंट फीचर्स एज इन हाउ द दिल्ली पहले कैलकाटा था और उसके बाद दिल्ली में हम लोगों ने देखा कैसे पहले 1857 के पहले क्या सिनेरियो था और 1857 और उसके बाद क्या सिनेरियो, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दिस पोस्ट 1857 क्या हुआ था एंड ऑल्सो द प्लानिंग ऑफ द न्यू कैपिटल, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।